Assalamu alaikum. Today we will be discussing about another topic of nursing foundations, which is types of beds and bed making used in patient care settings by nursing persons. So there are various types of beds which we prepare for the patients, and it is very somehow students feel it very difficult to remember the various differences between the different types of beds. So I'm trying my best to make it simple so that you will be able to understand the different types of beds and the principles or the rules of bed making. Let us first discuss various purposes of bed making. So the first purpose of bed making is to provide client with a safe and comfortable bed so that he can take rest and sleep properly. And once we prepare beds for the patients, it helps us to keep the ward neat and tidy, and bed making helps us to adapt to the needs of the clients and to be ready for any emergency or critical conditions of illness. For example, if we have a patient with cardiac disease, we can prepare, or any kind of cardiac disorder, we can prepare a cardiac bed, which we will discuss it later on in various types of beds. If we have a patient with some other problem, like if any amputation, we can prepare amputated bed. So if a patient has come from the theater, we can prepare the post of the bed. So in this way we meet the individual needs of the patients by preparing bed as per their special needs. And bed making helps us to economize time, material and efforts. Bed making is very useful in preventing bed sores, and it gives a chance to the staff nurse when she's preparing bed for the patient, and simultaneously she can just observe the condition of the client as well. So more often it helps us in promoting comfort to the patient. Bed making will help in preventing cross infection, and certain sometimes we are preparing bed for treatment of certain conditions. Let us now discuss the various types of beds which we can prepare. Beds can be specifically divided into two types of bed. Number one is simple bed or routine bed, and number two is special bed. सिंपल बेड और रूटीन बेड वो होता है जो हम यूजुअली ऑन डेली बेसिस प्रिपेयर करते हैं फॉर जनरल पेशेंट्स, एंड स्पेशल बेड वो वाले बेड्स होते हैं जहाँ पे हम पेशेंट की स्पेशल नीड्स मीट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं बेड. फॉर एग्जांपल, patient has undergone surgery, we prepare operation bed. Has certain complication, we prepare cardiac bed. And has a fractures, and we prepare fracture bed. So where we prepare, जहाँ हम बेड बनाते हैं एज पर पेशेंट नीड, वी कॉल दोज एज स्पेशल बेड्स. और जहाँ पे हम बेड बनाते हैं, बेड प्रिपेयर करते हैं फॉर ए पेशेंट इन जनरल, देन वी कॉल दैट एज सिंपल बेड और रूटीन बेड. Simple bed or routine bed can be of three types, like closed bed or unoccupied bed, open bed, and another one is the occupied bed. And the special bed can be operation bed, cardiac bed, post-op bed, fracture bed, amputation bed, etc. So let us discuss them one by one. Let us now discuss them one by one. The first kind of bed is closed bed. Closed bed का मतलब ये होता है that our bed is closed for the patient. That means हमारे बेड पे patient नहीं है, so that is why we call it as closed bed. And it is used to designate the hospital bed which usually remains empty until the admission of another patient. So ये हम क्लोज्ड बेड कब बनाते हैं, जब हमारा पेशेंट डिस्चार्ज होता है और जब तक नया पेशेंट आएगा तब तक हम बेड को बना के रखते हैं, एंड दैट बेड इज कॉल्ड एज closed bed. So closed bed means bed does not have any patient on it. Either the patient has discharged, or the patient has died or expired, or has been shifted to some other ward, and we have not yet received new patient for on the same bed.
Then the purpose of preparing closed bed is to keep the bed clean until new patient is admitted and to keep the bed ready for the new admission. As you can see in the picture that we have a bed where top sheet is fully uh, almost fully covering up to 75% covering the upper layers of the bed. The second type of bed which we prepare is open bed. यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जो क्लोज्ड बेड होता है उसमें हमारे पास पेशेंट अवेलेबल नहीं है, डिस्चार्ज हो गया है, या तो फिर डेथ हो गई है पेशेंट की, या शिफ्ट हो गया है और अभी हमने बेड पे पेशेंट रिसीव नहीं किया है। एंड ओपन बेड वो वाला बेड है जहाँ पे अब हमारे बेड पे या तो पेशेंट आने वाला है या तो पेशेंट ऑलरेडी बेड पे है, विच मीन्स हम बेड को प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर वाला शीट जो है वो पूरा पिलो तक कवर नहीं करता, फैन फोल्ड करके है टुवर्ड्स फुट एंड साइड। इसका मतलब ये है, दिस इज़ एन इंडिकेशन कि बेड जो है वो ओपन है। इस बेड पे पेशेंट आएगा, पेशेंट में बी आउट ऑफ द बेड फॉर सम टाइम, वॉशरूम गया है, वॉक कर रहा है, या फिर आने वाला है न्यू एडमिशन, एंड वी आर कीपिंग दिस बेड रेडी फॉर द न्यू पेशेंट और रेडी फॉर द पेशेंट जो कि एम्बुलेटरी हो गया और आउट ऑफ बेड है। सो ओपन बेड में या तो पेशेंट आपका आने वाला है, यू आर जस्ट रिसीविंग द पेशेंट, एडमिट हो गया है, नाउ यू हैव टू प्रोवाइड हिम विद द बेड, और आपका पेशेंट वार्ड में ही है लेकिन आउट ऑफ बेड है। मीन्स ओपन बेड ऑलवेज हैज़ ए पेशेंट ऑन इट। एंड इसको प्रिपेयर करने में क्या डिफरेंस है, जो हमारा क्लोज्ड बेड होता है उस पर हम यूजुअली टॉप शीट ऊपर तक कवर करते हैं, लेकिन जो हमारा ओपन बेड होता है उसमें हम टॉप शीट जो है वो फैन फोल्ड करके फुट एंड साइड की ओर रखते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास क्लोज्ड बेड है, अब थोड़ी देर बाद आपने पेशेंट को एडमिट किया है, नाउ यू आर रेडी टू रिसीव अ पेशेंट, आप उसके टॉप शीट को फैन फोल्ड करके यानी फोल्ड करके फुट एंड साइड तक ला सकते हैं, एंड दैट जस्ट बिकम्स ए ओपन बेड। फैन फोल्डिंग का मतलब है कि जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं, फोल्ड करके जो टॉप शीट, जैसे हम टॉप शीट फुट एंड साइड की ओर लेके आते हैं, उसको बोलते हैं फैन फोल्डिंग। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू बेड्स इज closed bed does not have any patient yet, but open bed is either receiving it or has already a patient on it. Now the third type of simple beds is occupied bed. Occupied bed is actually kind of modified version of open bed. That means you have a patient on the bed, but the difference only is that occupied bed में आपका patient bed पे ही होता है और आप bed making करते हैं। इसका मतलब आपका पेशेंट या तो बेड रिडन है या तो बेड से नीचे नहीं उतर सकता, और हम बेड मेकिंग करते हैं वाइल आवर पेशेंट इज स्टिल ऑन द बेड, एंड यूजुअली ये हम करते हैं आफ्टर मॉर्निंग रूटीन। सो ओपन बेड में आपका पेशेंट बेड से उतर सकता है, फिर आप बेड मेकिंग कर सकते हैं, या फिर आपने बेड को ओपन बनाया एंड यू आर अबाउट टू रिसीव ए पेशेंट। बट इन केस ऑफ ऑक्यूपाइड बेड you have a patient there on the bed and you are preparing the bed for the patient। और ये आईसीयूज वगैरह में या फिर ऐसी सिचुएशंस में किया जाता है जहाँ पेशेंट बेड से नीचे नहीं उतर सकता। Let us now discuss about the special beds. The first one is cardiac bed. Cardiac bed as name indicates, usually इसको हम prepare करते हैं for the cardiac patients।
बिकॉज ये हम उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं सो दैट द पेशेंट एज्यूम्स ए सिटिंग पोजिशन. And cardiac bed is actually a type of bed that is mainly arranged in such a way that patient is kept in a sitting position on the bed with the help of pillows and cardiac table. So यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पिलोज की ज़रूरत पड़ सकती है. एंड अगर हमारा बेड ऐसा नहीं है कि हम उसका बैक एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें वन ऑफ द कंफर्ट डिवाइसेस विच इज़ बैक रेस्ट उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है टू सपोर्ट पेशेंट इन फाउलर्स पोजिशन. बिकॉज कार्डियक पेशेंट्स यूजुअली दे फील डिस्निया, और जब हम उनके लिए कार्डियक बेड प्रिपेयर करते हैं और ऐसी पोजीशन में उनको फाउलर्स पोजीशन में रखते हैं या फिर रिक्लाइनिंग पोजीशन में रखते हैं, देयर डायफ्राम इज यूजुअली lowered and they feel more relaxed, and it usually relieves the patient from the problems which are caused by the heart diseases. और कार्डियक बेड प्रिपेयर करने के लिए बेसिक जो बेडिंग मटेरियल हमें चाहिए, टॉप शीट, बॉटम शीट, प्लस हमें जो इसके साथ ब्लैंकेट एंड अदर थिंग्स जो चाहिए, इन एडिशन टू दैट वी मे नीड कार्डियक टेबल एंड एक्स्ट्रा pillows for preparing cardiac bed. So for preparing cardiac bed you need all the basic things which are you need to prepare a simple bed, plus in addition to that you may need a cardiac table or extra pillows, and if bed cannot be adjusted you may need a backrest as well. Second type of special bed is our fracture bed, as you can see in the pictures. And this fracture bed is the one which is used for a patient with fracture. Either they may have the fracture of trunk or extremities. So वैसे पेशेंट्स को जहाँ पे ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ में फ्रैक्चर हो गया है, वी नीड टू प्रोवाइड देम फर्म सपोर्ट. एंड फर्म सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वी यूज़ फर्म मैट्रेसेस दैट रेस्ट ऑन द बेड बोर्ड और फ्रैक्चर बोर्ड. In addition to the basic bedding, here we may need fracture board for supporting the patient, because they need some hard surface to rest on, so that कि अगर उस हार्ड सरफेस पे वो रेस्ट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती हैं. बिकॉज फ्रैक्चर हो गया है, अगर सॉफ्ट वाला डनलप या डनलप यूज़ करेंगे तो उसमें उनकी मूवमेंट से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है. सो इसलिए हमें उनमें फ्रैक्चर बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है. और ये बेड यूजुअली हम एज नेम इंडिकेट्स वी प्रिपेयर दिस बेड फॉर पेशेंट्स विद फ्रैक्चर्स ऑफ ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़. इसके बाद जो हमारा अनदर स्पेशल बेड है वो है एम्पुटेशन बेड. एम्पुटेशन बेड उन पेशेंट्स पे हम यूज़ करते हैं जिनका कोई बॉडी पार्ट लाइक अपर लिम लोअर लिम काट दिया गया है एंड एम्पुटेट किया गया है बिकॉज ऑफ सर्टन कॉम्प्लिकेशंस. इसी वजह से हम इसको स्टम बेड भी बोलते हैं और डिवाइडेड बेड भी बोलते हैं. एंड इसको हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स में जिनमें मोस्टली लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो गई होती है. और जब हम ये बेड बनाते हैं तो हम इसमें we prepare it in such a way so that the stump is usually visible and elevated. These were the different types of beds, which include simple bed and special bed. Simple bed can be closed, can be open, it can be occupied. And special bed can be cardiac bed, it can be amputated bed, it can be fracture bed, etc. So now let us discuss about the articles which we require for bed making procedure. सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमें चाहिए बेड मेकिंग के लिए वो है मैट्रेस. मैट्रेस यूजुअली बेड पे प्रेजेंट होता है. अगर नहीं है तो
वार्ड में अवेलेबल मैट्रेस होता है तो जिसको हम बेड पे रख सकते हैं. मैट्रेस गिव्स सपोर्ट एंड कंफर्ट टू द क्लाइंट्स, बट ये जो मैट्रेस होता है इट शुड बी फर्म, इट शुड बी थिक एंड इट शुड बी स्मूथ. ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिन मैट्रेस भी नहीं होना चाहिए, एंड रफ सरफेसेस वाला मैट्रेस भी नहीं होना चाहिए. प्लस जो हमारा मैट्रेस हम बेड पे पेशेंट बेड पे यूज़ करते हैं दैट शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज. इट शुड कवर द होल ऑफ द बेड. यूजुअली recommended size is 190 centimeters in width, and most important is that our mattress should have a washable cover. For example, अगर किसी वजह से कोई प्रोसीजर करते टाइम पेशेंट के मैट्रेस के ऊपर ब्लड, मेडिकेशन या कोई और चीज़ गिर गई हो, वी कैन नॉट वॉश दैट होल मैट्रेस, which is a very difficult thing. So if we have a cover, we can then replace that cover and wash it. And that should be not only washable, that should be actually waterproof cover. So हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो बेड मेकिंग की है वो है मैट्रेस विद वॉशेबल कवर. मैट्रेस के बाद जो हमें सेकेंड थिंग चाहिए वो है पिलो विद कवर. सो पिलोज यूजुअली मैंने आपको कंफर्ट डिवाइसेस में भी पिलो पढ़ाया, यहाँ पे भी बेड मेकिंग में यूज़ होता है पिलो. सो पिलोज आर यूजुअली मेड आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग ईदर कॉटन और डनलप, and average size of the pillow should be 60 centimeter long, 45 centimeter wide and 10 centimeter thick. Pillows are actually used to provide rest and comfort to head part, and pillow cover should be slightly bigger than the pillow for easy insertion, and also this cover protects pillow from dust and dirt. And in some situations अगर आपका पिलो कवर किसी वजह से गंदा हो गया है, उस पर कुछ गिर गया है, यू कैन चेंज दैट. सो फर्स्ट थिंग वी नीड इज द मैट्रेस, आफ्टर दैट वी नीड पिलो विद कवर. थर्ड थिंग जो हमें चाहिए बेड मेकिंग में वो है बॉटम शीट, और विच वी कैन कॉल एज बेड शीट. ये जो हम बेड शीट मैट्रेस पे बिछाएंगे दैट उसको हम बोलते हैं बॉटम शीट. And these bed sheets are usually made of strong cotton material, and they are used to protect the mattress from soiling. अगर कुछ गिरेगा तो पहले शीट पे गिरेगा तो हम शीट इजीली चेंज कर सकते हैं, उसके बाद अगर गिरेगा तो शीट से होके वो बेड मैट्रेस कवर पे गिरेगा. सो इन वन वे जो हमारा बेड शीट होता है ये हमारे मैट्रेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सॉइलिंग. एंड जो हमारा बेड शीट है वो मैट्रेस से वाइड एंड लॉन्ग होना चाहिए, सो दैट कि हम उसको हेड एंड फुट एंड साइड से टक कर सके अंडर द मैट्रेस. यूजुअली जो हमारा बेड शीट होता है और बॉटम शीट होता है उसका साइज़ यूजुअली 108 इंचज़ लॉन्ग एंड 76 इंचज़ वाइड होना चाहिए. इट शुड बी वाइड एनफ. इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हम उसको टक ही ना कर सकें, या फिर एक साइड से टक कर सकें दूसरे साइड से निकल जाए, नहीं. शुड बी वाइड एंड लॉन्ग एनफ. जो हमारा बॉटम शीट होता है उसको हम टक करते हैं मैट्रेस के नीचे इन ए पर्टिकुलर वे, जिसको हम बोलते हैं मिटर्ड कॉर्नर बनाना. सो ये जो मिटर्ड कॉर्नर है ये एक टेक्निक है जिससे हम बॉटम शीट को फोल्ड करते हैं अंडर मैट्रेस. Its main purpose is to hold the linen firmly in place on beds, stretchers and examination tables. जब हम बॉटम शीट को फोल्ड करते हैं इन ए वे लाइक वी आर प्रिपेयरिंग द मिटर्ड कॉर्नर्स, उस वे में वो इजीली निकल के नहीं आते हैं, साइड से टक रहते हैं, प्लेस में रहते हैं. इसी वजह से हम मिटर्ड कॉर्नर्स बनाते हैं. अब हमारे बेड पे जो है मैट्रेस है विद कवर, देन हमने बॉटम शीट भी बिछाया है, उसको टक किया है प्रॉपरली बाय यूजिंग मिटर्ड कॉर्नर्स. उसके ऊपर जो हमें चाहिए वो है मैकिंटॉश.
मैकिन्टोश जो आप ये यहाँ इमेज में देख रहे हैं, रेड कलर का शीट है, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज मैकिन्टोश। ये वाटरप्रूफ शीट होता है जो रबर या फिर प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। इसको हम बेड पे इसीलिए बिछाते हैं सो दैट कि अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीड या फिर कोई सिक्रीशंस गिर जाए वो टॉप बॉटम शीट को गंदा ना करे, बिकॉज ये वाटरप्रूफ है। तो जो भी गिरेगा वो इसी पे रहेगा। देन वी नीड टू चेंज द मैकिन्टोश ओनली इन केस ऑफ सॉइलिंग। एंड इनको हम बिछाते हैं फ्रॉम साइड टू साइड, यानी ये लेंथ वाइज हम नहीं बिछाते, ये ब्रेड्थ वाइज हम बिछाते हैं। और ये होता है साइज में छोटा एज कंपेयर टू बॉटम शीट। जैसे आप देखेंगे नीचे जो ब्लू कलर का शीट है उसके ऊपर मैकिन्टोश स्मॉल साइज का है एज कंपेयर टू द बॉटम शीट। एंड यूजुअली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लाइंट शोल्डर्स टू बिलो नीज, इतनी इसकी लेंथ होती है सो दैट शोल्डर से लेके नीज तक ये कवर कर सके। मैकिन्टोश के बाद जो हमें चाहिए वो है वन अनदर शीट जिस कॉल्ड एज ड्रॉ शीट। बिकॉज मैकिन्टोश मैंने आपको बोला रबर का बना होता है, इस पे हम पेशेंट को बिठाएंगे तो स्किन इरिटेशन हो सकती है, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसीलिए हमें इस मैकिन्टोश को कवर करने के लिए एक छोटा शीट बिछाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ड्रॉ शीट, और यूजुअली हम इसको बोलते हैं ड्रॉ शीट। ड्रॉ शीट्स मेन पर्पस इज टू कवर द मैकिन्टोश। तो इसीलिए ये मैकिन्टोश से थोड़ा ब्रॉडर होना चाहिए सो दैट ये मैकिन्टोश को प्रॉपरली कवर कर सके। एंड ये जो हमारा ड्रॉ शीट है वी कैन यूज़ इट ऑफ टू टाइप्स, लाइक वन विच इज़ डिस्पोजेबल एंड अनदर वन विच इज़ वॉशेबल। डिस्पोजेबल वाला जो आप ये वाइट शीट देख रहे हैं ये डिस्पोजेबल वाला है, एक बार बिछाया कंटेमिनेट हो गया देन डिस्कार्ड कर दिया। एंड द वन विच इज़ वॉशेबल उसको हम यूज़ करके फिर अगर गंदा हो गया तो वॉशिंग के लिए भेजेंगे लॉन्ड्री सेक्शन, देन फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। एंड इनका जो एवरेज साइज़ होता है वो है 150 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 110 सेंटीमीटर वाइड। And if it is soiled, so it can be changed without changing the bottom sheet. So in certain areas disposable bed protectors under pads can be used instead of draw sheets. अभी तक हमने बिछाया मैट्रेस के ऊपर बॉटम शीट, मैकिन्टोश, ड्रॉ शीट। अब हमें चाहिए पेशेंट को ऊपर बिछाने के लिए कुछ और चीज़ जिसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट। Blanket is a large square or rectangular piece of thick cloth, especially one that you put on a bed to keep you warm. So sometimes in certain situations we may need extra blankets. So if you are very feeling very cold and you can ask then for an extra blanket on your bed. So blanket जो है अभी तक जो हमने पढ़ा ड्रॉ शीट, मैकिन्टोश एंड बॉटम शीट, वो पेशेंट के नीचे यानी बेड पे रहेंगे। अब पेशेंट को ऊपर बिछाने के लिए जो चाहिए वो है ब्लैंकेट। कुछ पेशेंट्स में हम ये जो ब्लैंकेट है ये डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर नहीं बिछा सकते, सच एज बर्न पेशेंट्स और पेशेंट्स विद स्किन अल्सर्स, लीजन्स, ब्लड क्लॉट्स, फ्रैक्चर्स और सर्जरी। उन पेशेंट्स में हमें जो यूजुअली बिछाना है ब्लैंकेट उसके लिए वी मे यूज़ क्रेडल। So cradle is the device which is placed on the bed under the top sheet, and it prevents top sheet from touching parts of the patient's body. And some of the cradles may have light bulbs to provide heat for special treatment. So हम कभी पेशेंट के ऊपर डायरेक्टली ब्लैंकेट बिछा सकते हैं, मोस्टली वैसे ही बिछाते हैं, बट इन सर्टन सिचुएशंस जहाँ हम ब्लैंकेट पेशेंट के ऊपर नहीं रख सकते लाइक अल्सर्स और बर्न्स में, उस केस में हम क्रेडल यूज़ करते हैं। क्रेडल मैंने ऑलरेडी कंफर्ट डिवाइसेस में एक्सप्लेन किया है। Another thing which we need is bed spread, or we can call it as counterpane. Bed spread, इसको हम ब्लैंकेट के ऊपर बिछाते हैं। It gives usually a neat appearance to the bed
and it protects the blankets and the bed as a whole from the dust. Its size is usually 3 meter long and 3 meter wide. So, to give a appealing appearance, we usually use बेड स्प्रेड ओवर ब्लैंकेट. सो ब्लैंकेट को कवर करने के लिए ऊपर से हम जो शीट बिछाएंगे उसको हम बोलते हैं बेड स्प्रेड और काउंटर पैन. So these were the articles which we require for bed making, which include mattress with the cover, pillow with cover, bottom sheet, Macintosh, draw sheet, blanket and bedspread or counter pan. And in certain patients we may need cradle also. Now there are certain rules for bed making which we should follow before actually preparing the bed for the patients. So the first rule is you should always use good body mechanics at all the time. इसका मतलब बार बार झुकना नहीं है, unnecessary यहाँ से वहाँ दौड़ना नहीं है. Arrange the article, place them on the side of the table properly and then go for bed making. अपने आप को थकाना नहीं है. Follow standard precautions, that means you have to wash your hands. जो हमारी contaminated bedding है और जो हमारी नई वाली जो हमने लाई है, वो वाली बेडिंग जो ऑलरेडी पेशेंट के बेड पे है और वो वाली जो हमने दूसरी लाई है, दोनों आपस में मिंगल अप नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हमने लाई है अभी फ्रेश वाली वो भी कंटेमिनेट हो जाएगी, तो बेड मेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. अनदर थिंग इज़ ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग क्लीन लिनन एंड आफ्टर हैंडलिंग डर्टी लिनन. Bring enough linen into the patient's room. Always keep linen covered. Then never shake linen. जब भी आपने पेशेंट की बेड से बेडिंग उठाई है जो पेशेंट ने यूज़ की है, उसको हमें कभी भी शेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो डस्ट होगा, इन्फेक्शन होगा, वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, दूसरे पेशेंट्स भी इन्फेक्शन उनको लग सकता है. सो डोंट टेक लिनन फ्रॉम वन पर्सनस रूम एंड यूज़ इट ऑन अनदर पर्सन. इसका मतलब हमें एक पेशेंट का जो है लिनन वो दूसरे पेशेंट पे यूज़ नहीं करना चाहिए. होल्ड लिनन अवे फ्रॉम योर यूनिफॉर्म. जो आप बेडिंग लाते हैं वो और आपकी जो यूनिफॉर्म है जो आपने पहनी है, दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म में यूजुअली जो होता है बहुत इन्फेक्शन लगा होता है. सो जो आपने स्टेराइल बेडिंग लाई है वो ख़राब हो जाएगी और क्लीन बेडिंग जो लाई है वो ख़राब हो जाएगी. नेवर पुट डर्टी लिनन ऑन द फ्लोर और ऑन द टॉप ऑफ द क्लीन लिनन, क्योंकि अगर फ्लोर पे रखेंगे तो फ्लोर कंटेमिनेट हो जाएगा. अगर टॉप ऑफ द क्लीन लिनन पे रखेंगे तो क्लीन लिनन को कंटेमिनेशन हो जाएगी. सो फिर कोई फ़न नहीं है बेड मेकिंग का. एंड ऑलवेज रोल डर्टी लिनन अवे फ्रॉम योर बॉडी व्हेन मूविंग इट फ्रॉम बेड. द बॉटम लिनन मस्ट बी टक्ड टाइटली विदाउट रिंकल्स, क्योंकि अगर उसमें रिंकल्स रहेंगे तो बेड सोर हो सकता है. कॉटन ड्रॉ शीट मस्ट कम्प्लीटली कवर द प्लास्टिक ड्रॉ शीट. जो मैंने आपको भी बोला, मैकिन्टोश को कवर करने के लिए जो हम ड्रॉ शीट यूज़ करते हैं वो ड्रॉ शीट से ब्रॉडर होना चाहिए लेंथ में. Then straighten and tighten the loose linen wherever necessary. Then prepare bed on one side completely before going to other side. That means you have to tuck the corners, you have to make the mitred corners on one side completely, then move on to the other side of the patient. And the large hem should always go to the top of the bed. Now there are certain general instructions which we follow for bed making. Number one is wash hands before and after the procedure. Don't expose the client unnecessarily. Protect the linen from draught. Don't cover the patient's face while placing the linen. Don't let the linen touch your body or uniform. And always keep a reasonable distance from the face of the client to prevent cross infection. All the equipment is needed
for bed making, they should be collected before starting, and bed should be made in such a way so that patient can be put in it without any difficulty. It should be free from cramps and creases and should give a maximum comfort to the patient. Pillows and other bed accessories should be well arranged to give support wherever necessary. So extra assistance in case आपको चाहिए, so you can ask for help. And while shaking pillow, the nurse should always turn away from the patient. And one more thing, जो pillow case का opponent होता है, that should actually be away from the main entrance, so it doesn't look appealing and it can catch the dust. इसीलिए जो उसका opponent होता है वो entry side से के opposite में होना चाहिए. Always have a dirty linen bin at hand in which to put dirty linen. And dirty linen should never be carried across the ward to prevent cross infection. मतलब अगर आपने एक पेशेंट का के बेड से डर्टी लिनन उठाई है, पुट इट इन द बिन, फिर उसको उठा के दूसरे पेशेंट के पास ले जाएंगे, फिर दूसरे पेशेंट की बेडिंग उसमें डालेंगे, फिर उठा के तीसरे पेशेंट के पास ले जाएंगे. इन दिस वे यू आर कंटेमिनेटिंग द होल ऑफ द वार्ड. सो कभी भी एक पेशेंट की डर्टी लिनन उठा के दूसरे पेशेंट के पास नहीं ले जानी है. एंड जब भी आप बेडिंग फुट एंड साइड से टक करते हैं, थोड़ा सा लूज रखना है, बिकॉज फुट मूवमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत टाइटली आपने टक किया है, इन दैट वे देयर आर द चांसेस ऑफ फुट ड्रॉप फॉर द पेशेंट एंड पेशेंट में फील वेरी मच डिस्कम्फर्ट. And never ever discuss personal matters while you are preparing bed for the patient. And always wash hands before and after bed making. So this was all about the various types of beds and what are the various articles required for preparing the bed, and general instructions and principles which you should follow while preparing bed for the patient. So if you have any query, you can comment me. Thank you so much for patient listening.